بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ اس وقت جو سپریم کورٹ ہے وہ بڑے ایکٹیو ہو کے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، اور پہلے جو چیز کہی گئی تھی اس پہ بھی بڑے مستحکم طریقے سے قائم ہے۔ یہ جو الیکشن ہونے پہ سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ 8 فروری کو آخر الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے، وہ تمام تحفظات کو ختم کر دیا گیا ہے، اور آخر کار قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مہر لگا دی ہے کہ انتخابات تو وقت پہ ہی ہوں گے، لیکن انتخابات وقت پہ ہونے کے ساتھ ساتھ لیول پلینگ فیلڈ کا نعرہ ابھی بھی ہمارے کانوں میں آ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے جناب کہ جب الیکشن ہونے لگیں گے، جب یہ تمام چیزیں کاغذات نامزدگی جمع ہو جائے گی، اس کے بعد پی ٹی آئی کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے گا۔ لیکن لیول پلینگ فیلڈ کا ایک تسلسل ہی ایک بڑی مضحکہ خیز بات ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کس طرح کی؟ کیا کسی نے جرم کیا ہے اور کسی اور نے اس کا وہ جرم نہیں کیا، تو کیا لیول پلینگ فیلڈ میں دونوں کو سزائیں ایک جیسی دینی چاہیے؟ اور چلے جناب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر بھی لیتے ہیں، تو کیا اس وقت نون لیگ جس پوزیشن میں ہے، 2018 میں جس پوزیشن میں تھی، کیا اس وقت پی ٹی آئی بھی کم و بیش اسی پوزیشن پہ نہیں آ گئی ہے؟ اس وقت تمام جماعتیں یہ سوچ رہی ہیں کہ اس الیکشن کمیشن پہ بہت گہری ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ اس وقت آپ کے پاس نگراں حکومت کا سیٹ اپ بھی ہے، الیکشن کمیشن بھی ہے، اس کے باوجود بھی الیکشن فیئر ہوں گے نہیں ہوں گے، اس پہ سوال اٹھ رہا ہے۔ الیکشن فیئر ہونے کا سوال نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں اٹھایا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات اور اکانومی کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکیں گے الیکشنز جو ہیں اس میں دھاندلی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ جو بھی نہیں جیتا وہ جناب یہ کہتا ضرور ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کسی اور کو لاڈلا کہنے والے اور یہ کہنے والے، آج جیسے نواز شریف صاحب کا بیان آیا کہ مجھے نکالا گیا، اور ایک شخص جو بہت اپنی ماضی کی تمام چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا، جس میں وہ ہائی جیک ہونے والی بات بھی وہ بیچ میں لے کے آ رہے، تو جو 98-99 کی کہانی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان تمام چیزوں میں لاڈلا 2 اپنے آپ کو کہلوانے والے آج لاڈلا 1 کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا۔ لیول پلینگ فیلڈ کسی ایک کو تو دی جا رہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی بھی بڑی خوش گمان ہے۔ پیپلز پارٹی اس وقت یہ کہتی ہے، ان کے کارکن یہ کہتے ہیں کہ اگلی حکومت پیپلز پارٹی بنانے جا رہی ہے۔ تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں راؤ عمران سلیمان صاحب۔ سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہمیں جوائن کریں گے اسد محمود صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں، کچھ دیر میں ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسٹوڈیو میں چلتے ہیں، راؤ عمران سلیمان صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ پی ٹی آئی کی موجودہ صورتحال پہ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ لطیف کھوسا کی انٹری پی ٹی آئی کو کہاں پہ لے کے جائے گی؟ اور اس وقت جب ان سے کہا گیا تو ایک نجی ٹیلی ویژن کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے مجبوراً کہا گیا، کیونکہ پارٹی کے حالات اس وقت ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اینڈ وقت میں کوئی چھوڑ کے بھی جا سکتا ہے، قدم ڈگمگا سکتے ہیں، بلے کے نشان کا بھی مسئلہ ہے، تمام چیزوں میں اگر مجھے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ آپ انتخابات لڑیں تو میں لاہور سے لڑوں گا۔ اب یہ لاہور والا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیا سمجھتے ہیں اس پہ آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک عام سا تاثر بڑا عام ہو چکا تھا، یہ بہت سارے لوگوں میں ہوتا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں گے تو اس کو ووٹ پڑ جائے گا۔ پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اب ایسا فی الحال ماحول نہیں رہا۔ یہ جو آپ الیکشن کی بات کرتی ہیں وقت پر ہونے کی، تو ان طاقتور حلقوں کو اب اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ ہم نے ان کو ہر طریقے سے نہتا اور بالکل اکیلا کر دیا ہے، لہذا اب الیکشن ہو جانے چاہیے۔ تو یہ الیکشن اگر وہ سمجھتے کہ ابھی بھی عمران خان کی طاقت موجود ہے عوام میں اور عوام گھروں سے باہر نکل سکتی ہے، تو یقینی طور پر یہ الیکشن آگے چلے جاتے۔ اب یہ طے ہو چکا کہ الیکشن واقعی 8 فروری کو ہوں گے۔ اچھا، دوسرا یہ تھا کہ جو لاہور میں عمران خان صاحب کا الیکشن لڑنے کی بات کی کہ عمران خان صاحب اس بار لڑیں گے تب بھی وہ ناکام ہوں گے۔ اس کے میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ ابھی حال ہی میں آپ نے 24 گھنٹے نہیں گزرے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان جاری کیا، اس نے کہا کہ لاہور میں پنجاب کی طرف کے 142 سیٹوں میں سے ہم 120-124 کی سیٹیں لے لیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک لاہور کی ایک ڈی سی خاتون کی بات کریں جو کہ خاتون ہے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ لاہور کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کی رشتہ دار ہیں، وہ ایک ہی وقت میں 14 حلقوں کی ریٹرننگ آفیسر ہے۔ اب اس طریقے کی اگر ہم اور گنتی کرنا شروع کریں تو وہ 120 اور 124 کا جملہ ادا کیا ہے، وہ چاہیں تو وہ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کہیں تو یہ تاثر رکھنا ہے کہ مکمل طور پر بے ایمانی نہیں ہوئی، یعنی کہ الیکشن میں اگر ہم نے کیا ہوتا تو ہم پورے وہاں سے کیوں ہارے۔ تو یہ تمام چیزیں طے پا چکی ہیں، اور عمران خان صاحب کی بات ہے وہ بالکل اس وقت ان کو کمزور کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں، الیکشن کے اندر ایک ماحول کا، سازگار ماحول کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر عین وقت کے اوپر، جبکہ وقت بھی نہیں رہا، اگر آپ ان کو آزاد کر دیں اور کہیں کہ اب الیکشن لڑیں تو بتائیں کیا کارکنوں کی ضرورت نہیں پڑے گی؟
इलेक्शन के दिनों में आपको इमरान सुलेमान वोटर्स साहब, की मुझे जरूरत ऐसा पड़ती लगता है कि अगर ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, सारी चीजें अब इनके पास नहीं है। अब आप वो कहते हैं पर काट कर किसी को परवाज दे रहे हो, तो अभी उनके पर काट दिए गए हैं। नहीं, इस वक्त जो पाकिस्तानी कौम जिस जहनी कैफियत में से गुजर रही है, और इमरान खान के तरफ से एक जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी पाया जाता है साबिक चेयरमैन पीटीआई की तरफ के लिए, तो अभी भी अगर आप जो जुमला आपने कहा कि अगर आज़ाद कर भी दिया जाता है तो ऐसा नहीं हो सकता। एक सिंपैथी वोट हासिल करने की सियासत पाकिस्तान में रही है, हम 2008 में भी इस सियासत को देख चुके हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये सिंपैथी वोट पड़ेगा पीटीआई को? देखिए, पहले तो पड़ेगा, वो इस तरह भी पड़ सकता है कि अगर आपके बल्ले का निशान भी छीन लिया जाता है और आपको इजाजत ही नहीं मिलती, तो पीटीआई की तरफ से आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर लोग सामने आ सकते हैं, उनको एक अंदरूनी तौर पर एक आवाज़ लगाई जा सकती है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी ख्वाहिश है कि अगर पीटीआई का चेयरमैन किसी तरीके से जेल में से एक मैसेज कर दे कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देना है, तो यकीनी तौर पर वो बिलावल साहब का जो जुमला है वजीर आजम बनने का, वो पूरा भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए भी शफाफ इंतखाबात का होना बड़ा जरूरी है। और दूसरा यह है कि अच्छा, आपने आज़ाद उम्मीदवार वाली बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको नहीं लगता कि अगर आज़ाद उम्मीदवार वाले चक्कर में पड़ गए ये लोग, तो आधे तो इनके जो लोग हैं वो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ले जाएगी, आधे जो है वो नून लीग ले वो तो जो जिसने जाना था वो चला गया। लेकिन देखिए, आगे नहीं लगता आपको जो ताकतवर शख्सियात हैं जिनको पावरफुल, जिनके अपना जाती वोट है, वो लोग तकरीबन अब पार्टियों में चले गए हैं। लेकिन बात यह है कि वो खंबे वाला जिक्र जो कि इमरान खान अगर देगा, तो अब वुकला की एक तहरीक है, वुकला को ज्यादा से ज्यादा वोट टिकट दिया जाएगा अगर वो इजाजत देते हैं। तो वकीलों के अंदर एक ताकत यह है कि अगर कल को मुझे कोई पुलिस वाला पकड़ कर ले जाता, तो अगले दिन मेरी जमानत के लिए कोई आ तो जाएगा। ये एक इनके पास तासुर है, यही इनका मामला है। आज हम देखें कि वुकला तहरीकों ने बड़ा उधम मचाया है, एक ताकत बनकर आए हैं। यही वजह कि लतीफ खोसा साहब ने ऐसे मौके पर फैसला किया जब तमाम लोग, मेरे ख्याल से कुछ फैसला इनका भी आ सकता है, परवेज इलाही साहब का भी आ सकता है। एक हद होती है, हर एक चीज की हद होती है कि आपको मुसलसल जमानतों के बावजूद दोपहर और शाम का जो साया है वो बाहर देखना नसीब ना हो। आपको लगता है लतीफ खोसा साहब जो है वो साबित कदम रहेंगे, कहीं उनकी गिरफ्तारियों वाले सिलसिले ना शुरू हो? देखिए, उनका लतीफ खोसा साहब का एक जज्बाती फैसला है, आने वाले दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। सियासत है, ये किसी भी तरफ रुख मोड़ सकती है, और बिलावल साहब का जुमला भी किसी हद तक दुरुस्त हो सकता है। आपने सरफराज बुक्टी साहब को एक दफा देखा, तो हमने पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी पीटीआई से कोई इत्तेहाद वाली सूरत हाल कर लेती है तो बड़ा फायदा होगा। दोनों तो फायदा उस सूरत में होगा अगर तयशुदा मामलात हैं, अगर तयशुदा मामलात हैं कि आपने तय कर लिया है कि किसको किस तरीके से लड़वाना है, तो कोई दो राय नहीं, जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें 100% यकीन है। लेकिन आने वाले हुकूमत का जो जायचा वो ये है कि हुकूमत में आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद होंगे वफाकी हुकूमत में। ये तमाम लोग, वो पीडीएम की 13-14 जमातें थी, वो दोबारा से बरसर इक़्तिदार होंगी, और अपोजिशन में हम पाकिस्तान ये पीटीआई को ही देख रहे हैं। पीटीआई होगी, चाहे वो 2 सीटों के साथ हो या 1 सीट के साथ हो, अपोजिशन का किरदार पीटीआई ही करेगी। ये तमाम लोग होंगे। अब ये जो इतनी भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इलेक्शन का माहौल तो बनाना है, बजाय इल्जाम तराशियों को हम किस तरीके से आवाम में जा सकते हैं। पीटीआई के ताबूत में आखिरी कील जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की ठोकने की कोशिश की गई थी, उसके आगे तो हमें ये नजर आ रहा है कि अब पार्टी के अंदर जो इंट्रा पार्टी के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से सवाल उठ गए हैं और एतराज हुआ है और कालादम करार दिया गया है कि उस पर भी जो इलेक्शन माजी में भी कभी नहीं हुआ ऐसा। सियासी जमातों के अंदर इसी तरह इंतखाब होता है, और ये यकीन जाने के ना तो कालादम होगा इनका, ना कुछ होगा, ये इसी तरह रहेगा। माजी में भी ऐसा होता रहा। अब इनकी सारी तवज्जो आने वाले इलेक्शन में है। इनको पार्टी के इमरान खान से खौफ था, बाकी इनकी बला से कोई भी चेयरमैन बने, चाहे उनकी बहन बन जाए, लतीफ खोसा साहब है उनको बना दे, शेर अफजल मरवत को बना दे, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई की कमर को मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया गया। अगर नहीं तोड़ते और उनको मुकम्मल यकीन ना होता, तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होनी थी। मतलब इसमें कोई इतनी पार्टी में जो इतना हवा हो रहा है और जो लोग इस पे परेशान हो रहे हैं, आम पब्लिक इसमें परेशान हो रही है। 2002 में भी हम ये सूरत हाल पीपल्स पार्टी के साथ देख चुके हैं। उन्होंने बड़ी आराम से एक और पार्टी खड़ी कर दी। आपको लगता है कि अब इतना टाइम है कि पीटीआई टाइम नहीं पार्टी बचा, बिल्कुल टाइम नहीं बचा। उन्होंने बड़े आराम से मखदूम अमीन फहीम साहब को खड़ा कर दिया था और तलवार आ गई थी। और पहले भी हम शेर की जगह साइकिल को भी हम देख चुके हैं। फिर भी इसके बावजूद कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हर दौर में ये तमाम लोग लाइन में लगे हुए हैं। तमाम लोग ही लाडला नंबर 1 के बनने के चक्कर में अपने तमाम फरमाइशों को पूरा कर रहे हैं कि अगर वो कहता है कि आप कहेंगे तो मैं अमेरिका के आगे झुक जाऊं, वो झुकेगा, मैं लेटूंगा। इस तरह के इनकी सीरियल चल रही है। अभी आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, तो क्या बिलावल भुट्टो साहब को इस बात का यकीन नहीं कि 1993 में जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को हटाया गया था,
उस वक्त के गुलाम इसहाक खान ने 58 भी की शिक के तहत उनको गिराया, उनकी पूरी पार्लियामेंट को उलट के रख दिया। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट जो थी वो नवाज शरीफ का साथ थी, उसने उनका तमाम फैसला का लदम करार देकर उसी पार्लियामेंट को जू का तू रख दिया। लेकिन उन्हीं मुक्तदरा हल्कों को इस बात को ये फैसला पसंद नहीं आया। उन्होंने नवाज शरीफ के लिए ऐसे हालात पैदा किए जिसके बाद उनको खुद अपने हाथ से दस्तखत करके जाना पड़ा। लेकिन फिर क्या हुआ, नवाज शरीफ को ही वोट पड़ा, लेकिन रातों रात इंतखाबात चेंज करके मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की हुकूमत को लाया गया, उनको हुकूमत दी गई। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड का इस वक्त तो एक 14 जमातों का गठजोड़ बन के हुकूमत करने जा रहा, वहां तो मोहतरमा ने अकेले राज किया था। ये क्यों भूल गए कि बेनजीर साहिबा जब आई थी पाकिस्तान तो वो एक एनआरओ के तहत आई थी ना, मुशर्रफ से मामला तय करके। तारीख में जो 2/3 मेजोरिटी से हुकूमत आई है वो तो सिर्फ एक नवाज शरीफ साहब की आई है, इसके अलावा तो हमें किसी की नजर नहीं आती है 2/3 मेजोरिटी से किसी। नवाज शरीफ साहब भी मिलजुल कर ही हुकूमत बनाएंगे, इसमें एमक्यूएम का भी साथ होगा, इसमें काफ लीग का भी साथ होगा, इसमें बलोचिस्तान की सियासी जमातों का भी साथ होगा। आप 2024 में देख रहे हैं, 2024 में तो आपको कोई 2/3 मेजोरिटी सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए मैं आपको आज मैं एक नक्शा खींचता हूँ, किसी दिन इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा तो मैं ये सच साबित करूंगा। अभी तक मैं समझता हूँ किसी टीवी चैनल पे एक तबसरा है, तजिया शेख रशीद रोजाना हुकूमत गिराता था, कभी गिरी तो नहीं। एक तजिया हम भी कर देते हैं, वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बिल्कुल वही हालात बना दिए जाएंगे जो 93 के अंदर बनाकर मोहतरमा को लाया गया था, यानी कि बिलावल को उस तरीके से वजीर आजम लाएंगे। क्योंकि मियां नवाज शरीफ के ज़ात के अंदर जो है ना वो ठहराव नहीं है। हमने जितनी 3 हुकूमतें इनकी देखी है, इमरान खान साहब ने तो थोड़ा टाइम लेकर उनके ऊपर बमबारी की थी। ये लफ्जों की जो बमबारी है ये नवाज शरीफ साहब दूसरे तीसरे महीने शुरू कर देंगे और मुख्तलिफ मामलात में जब इनको टांग अड़ती हुई नजर आएगी तो ये फिर दोबारा जलसा जुलूसों में ऐसी बात करेंगे। वही माहौल पैदा करके मोहतरमा बेनजीर यानी कि बिलावल साहब की हुकूमत को लेकर आएंगे। ये बिलावल साहब इस वक्त मंजूर नजर में हैं, इनका नंबर है, हो सकता है कि 5 साल मुकम्मल ना करें नवाज शरीफ, और 5 साल मुकम्मल नहीं होंगे तो माहौल यही होगा कि यही 2.5-3 साल का पीरियड होगा। उसके बाद बिलावल साहब को उसी तरीके से ले आएंगे जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को लेके आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को भी हम मजलूम बनाते हैं, तो 93 की बात करें तो वो मजलूम थे ना, 2018 में मजलूम थे ना, तो ये मजलूमियत थी, तो आज वो मंजूर नजर है। फर्क कितना है? नहीं, मंजूर नजर होने के अलावा भी राव इमरान सुलेमान साहब इस वक्त कौन सा ऐसा बयानिया है जिसको लेकर पब्लिक के सामने जाएं और कहेंगे जनाब हमने आपके लिए ये किया है तो आप हमें वोट दे दें? कोई किसी भी जमात के पास अभी वो बयानिया मौजूद नहीं है, किसी के पास नहीं है, पीडीआई के पास भी नहीं है कि हमने मुल्क को इतना कुछ डिलीवर कर दिया है कि जनाब आओ हमें वोट दो। क्या है किसी के पास बताने के लिए? बदल गया है, बयानिया का वक्त बदल गया है, लोगों को पता चल गया कि हुकूमतों की कानून साजी कहीं और से होती है। हम ये देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरी तख्तियों पर तख्ती लगाएगी और वोट किसी और को दे। हम ये सवाल अगर करें तो सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब आप अपना रोना धोना बंद करें, आगे का बताएं, आगे क्या आवाम को देने जा रहे हैं? 4-5 सालों पहले हुकूमत बना चुके हैं आपने, अब क्या आवाम को डिलीवर करना? पुराना ही रोना है तो फिर आपके क्या पीछे रह गया है? तो मैं समझता हूं कि रोना धोना तो माजी का करेंगे ही। अभी आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जिक्र किया, बड़े मजे का आपने जिक्र किया है, लेकिन मुझे ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को तमाम चीजें मैसर हैं, ऐसी इस वक्त जो जुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं कमोबेश वो वही वाली जुबान है जो चेयरमैन पीटीआई इस्तेमाल किया करते थे। बड़ी उनका बिल्कुल हो गया जो पब्लिक को अट्रैक्ट करता है, जो जवान लोगों को अट्रैक्ट करता है। आपके 6.5 करोड़ के करीब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सिर्फ नौजवान ही मौजूद हैं जो वोट देगा। हाँ, तो उनकी जो लैंग्वेज है, उन चीजों को, उनके जो अंदाज है, उसको नौजवान नस्ल ही अट्रैक्ट करेगी बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन उसका जो दबाव है बिलावल साहब का वो किसी हद तक कामयाब हो चुका है। वो कैसे कामयाब हुआ कि बलूचिस्तान में सरफराज अकबर बुगटी साहब जो वजीर दाखिला है, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा देने के साथ ही मीडिया के सामने कहा कि मैं नून लीग में जा रहा हूं। फिर रात को ऐसी कौन सी कॉल आई, कौन सा ऐसा मैसेज आया कि उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म चेंज किया? यानी कि तय ये पा गया कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब आप ले लें, बलूचिस्तान और सिंध आप ले लें। बलूचिस्तान में तो खैर आने वाले वक्त में इशारा दिया गया उस शख्स को जो शख्स लंदन में वोट को इज्जत दो का नारा लगाता था। ये उसको इशारा दिया गया है। आप वोट दो को इज्जत दो वाला नारा तो कहीं बहुत पीछे रह गया है। ना आप वोट को इज्जत दो, ना आप एहतसाब। अब सिर्फ ये बात हो रही है कि जनाब बस हमें बैठने दें, आप आगे की कोई स्ट्रेटजी भी नहीं है आपके पास, क्या प्लानिंग नहीं है आपके पास, क्या देना है आपके पास, कोई प्लानिंग भी मौजूद नहीं है। सिर्फ एक सीट के मजे लेने हैं, जैसे 16 महीने आपने ड्राइविंग सीट के मजे ले लिए, आगे पास आपके पास पल्ले है नहीं कुछ बताने के लिए कि करना क्या है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं।
ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है ये जो जितने ऐसे बिल बनाए जाते हैं जिसमें सीक्रेट एक्ट बिल की का भी जिक्र है और अब पहले भी बात कर चुके हैं, मुझे इस बात में कोई आड़ नहीं है। हम किसी इदारे के बारे में बात नहीं करते, हम कोई किसी को पाकिस्तान पे उंगलियां नहीं उठाने देते, लेकिन ये ज़रूर है कोई भी ऐसा बिल जो कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करता हो उस पर बात बतौर सहाफ़ी मुझे करना ज़रूरी है। और वो बिल जिस पे सब मज़े ले रहे हैं और उस पर खुश हो रहे हैं कि दूसरों के गर्दन पे रस्सा कस दिया गया है, तो यही रस्सा आगे भी कसा जाएगा। जिस तरह से अभी मेरे मौजूद मेहमान ने ये बात कही, उसका जिक्र किया, ये सब कुछ आगे भी होने जा रहा है और इन्हीं असूलों के तहत होगा, चाहे वो सीक्रेट एक्ट बिल हो या आपका जो है फौजी अदालतें लगनी हो। ये जब आप दूसरों के साथ करेंगे तो आपके साथ भी होगा। और आपने कोई दूध और शहद की नदियां नहीं बहाई हुई थी कि आपसे हम एक्सपेक्ट करें कि आप मुल्क के माहौल को बड़ा अच्छा लेके चलेंगे। कोई जनाब ये भी कहता है, थोड़ी देर पहले मैं टीवी स्क्रीन पे देख रही थी कि ये कहा जा रहा था कि साबिक चेयरमैन पीटीआई के केसेस को नवाज शरीफ साहब के केसेस से ना मिलाया जाए, तो वाकई नहीं मिलाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब के केसेस एक बिल्कुल डिफरेंट केसेस थे। पनामा में जो कुछ हकीकत थी वो एम ही नहीं थी, किसी पाकिस्तानी ने नहीं बनाया वो, या फंसाने की कोशिश नहीं की गई थी। या आलमी जो सहाफ़ियों की तंजीम है, जो इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट हैं, ये उनकी रिपोर्टें थी जिससे साफ पता चलता है कि किसने ऑफशोर्स कंपनियों से कितना कमाया है और कितना नहीं कमाया। साबिक चेयरमैन पीटीआई की गलतियां ये थी कि उनकी स्ट्रेटजी गलत थी और उनके साथ जो लोग मौजूद थे वो बहुत गलत। आगे चलते हैं। जनाब असद महमूद साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। असद महमूद साहब, सियासत का रुख कुछ बदला भी है। एक तो इलेक्शंस का जो एक राग था कि नहीं होंगे, लेकिन अब ये नजर आ रहा है कि जनाब इलेक्शंस भी होने वाले और नवाज शरीफ साहब भी तमाम चीज़ों से बरी हो चुके हैं। आगे आपको क्या नज़र आता है कि क्या होने जा रहा है, जबकि एक मुल्क की जो दूसरी बड़ी जमात है पीटीआई, दूसरी बड़ी जमात है, हम इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त पीटीआई के बड़े बुरे हालात चल रहे हैं, तो इस वक्त लाहौर में खोसा साहब भी लड़ने की बात कर रहे हैं कि जनाब वो भी इलेक्शंस में जो है वो हिस्सा ले सकते हैं। क्या देख रहे हैं मंजरनामा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, इस वक्त अगर आप मुल्क के हालात देखते हैं और सर्टली आपको लगता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन जो है वो बिल्कुल वो सर पे पहुंचे हुए हैं, वो उन्होंने करना ही है। इलेक्शन कमीशन की जो है वो आपको फुर्तियां भी एक लिहाज से नजर आ रही हैं, वो ट्रेनिंग देते हुए भी सब कुछ नजर आ रहे हैं। बस प्रैक्टिकली टॉकिंग, अगर हम पाकिस्तान की या पाकिस्तानियों की बात करें, थोड़ा सा आपने ये बिल्स की भी जैसे बात की, तो आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर ये एक बड़ा मुख्तलिफ मुल्क है पाकिस्तान, जिसके अंदर हम रह रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क से हर शख्स भागना चाहता है। नोबडी वांट्स टू स्टे इन पाकिस्तान। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर हूँ और हर शख्स, स्पेशली यंगस्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ, उनको किसी तरह का कोई ट्रस्ट, किसी तरह का कोई भी अगर कोई एतबार की आप बात करते हैं तो वो पाकिस्तान पे या पाकिस्तान के इदारों पे अनफॉर्चुनेटली नहीं रह गया। इसके अंदर वो पुलिस को आगे लेके आते हैं, FIA की आप बात करते हैं, SBR की बात करें, अदलिया की बात करें, यू नेम एनी डिपार्टमेंट, पूरे मुल्क में किसी को किसी के ऊपर कोई एतमाद नहीं है। तो ये तो वो सिचुएशन है जो कि आप हर पाकिस्तानी की देखते हैं। नो एवरीबडी, मैं आपसे ये भी कहूंगा कि मोजज़े का इंतजार कर रहा है कि कोई मोजज़ा हो जाना चाहिए। तो डू यू थिंक कि मतलब पाकिस्तान के लिए सिर्फ मोजज़े करने रह गए कि सिर्फ पाकिस्तान में कोई मोजज़ा होकर हर चीज ठीक हो जाएगी? 6.5 करोड़ के करीब नौजवान भी तो है जो वोट डालेगा। आप अगर नौजवान के बाहर जाने की बात करते हैं और साथ ही साथ यही नौजवान है जो पाकिस्तान दुनिया भर में 5वें नंबर पे आ चुका है, जो कंप्यूटर के पीछे काम कर रहे हैं, दुनिया भर की इकोनॉमी में एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, अपना पैसा खुद कमाने, रियासत कुछ नहीं कर रही है उनके लिए, ये उनको पता है। वो यहाँ से ही डॉलर कमा रहा है बच्चा, यहाँ का पाकिस्तान का। ये प्रॉब्लम हो गई है ना। अब आपने बात की कि रियासत की अगर आप बात करते हैं, और रियासत नहीं, रियासत तो खत्म हो चुकी है, अब तो इसको इलीट ने आके कब्जा कर लिया है। और इलीट वो है जो कि वो बिल पास करती है जो उनको सूट करते हैं। मैं रावलपिंडी के अंदर रहता हूँ, यहाँ के एक पुलिस स्टेशन है, एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन, उसकी एक गाड़ी ऑलमोस्ट शाम के थोड़ी देर के बाद आके खड़ी हो जाती है और वो तमाम, चाहे मोटरसाइकिल वाले हैं, गाड़ियों वाले हैं, इररिस्पेक्टिव वो उसको रोकना शुरू करते हैं। एंड डेफिनेटली एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि अगर पुलिस रोकती है तो व्हाट इज द पर्पस। मैं छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। इट इज हैपनिंग एवरीवेयर, स्पेशली इन पंजाब एंड डेफिनेटली सिंध के अंदर भी ये हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब इस कदर नागुफ्ता हालत है
सरकारी इदारों की अगर हम बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, जिन्होंने आपकी हिफाजत करनी है और उनकी तरफ लोग देखना पसंद नहीं करते, तो आप सोच सकते हैं कि मुल्क ये नौजवान कहाँ किस तरफ लेके जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं। मैं पाकिस्तानी नौजवानों के साथ फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे तो बेतहाशा उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। दे वेरी अपराइट, दे वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे आर रियली ऑनेस्ट। ये स्पेशली मैं अपनी यंग जनरेशन की बात करूं, उनका IQ लेवल हम जैसे लोगों से बहुत ऊंचा है, बहुत ज्यादा है, बहुत बेहतर है। बट इसके बावजूद जब उनको मेरिट कहीं नजर नहीं आएगा, जब उनको हर जगह रास्ते बंद मिलेंगे, ना वो कारोबार कर सकते हैं, ना कहीं मुलाजमतें उनको एक लिहाज से मिल रही हैं, ना और किसी तरह का कोई कर्जा अगर ये हुकूमत दे सकती है, क्योंकि ये तो खुद पूरी दुनिया से भीख मांग रहे हैं, तो हाउ डू यू से कि ये लोगों को कर्जे देंगे, अच्छा भी आप अपने कारोबार को सेट करें। तो प्रैक्टिकली टॉकिंग पाकिस्तान वी आर इन अ वेरी वेरी बैड शेप। आप यकीन माने, हम कभी बात करते थे बांग्लादेश की, ऐसा लगता था कि नहीं वी आर फार फार हेड ऑफ बांग्लादेश, एंड सी आज बांग्लादेश उसकी इकोनॉमी किधर खड़ी है एंड व्हाट आर वी डूइंग। आज बिजली का रेट इंडिया बांग्लादेश का देख लें, पाकिस्तान का देख लें, सुई गैस का देख लें, पाकिस्तान का देख लें, आपको सारा फर्क पता चल जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर अगर आप ये कहें कि नहीं पाकिस्तान आगे जाएगा, पाकिस्तान बढ़ेगा, मैं आई एम सॉरी कि मैं तो थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल हूँ, बट इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन सर कोई रोड मैप है? आप समझते हैं कि किसी के पास कोई सोल्यूशन है? मान लिया चले ठीक है, अब तो सियासतदान भी ठीक होने चले, अज्यूम कर लेते हैं कि अजम्पशन है कि ठीक हो जाते हैं, फिर क्या आप समझते हैं कि कोई ऐसा हमारा डेवलपमेंट का कोई इदारा है, कोई हमारी इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं कि हम कहें कि जनाब ये इकोनॉमी हमारी बेहतर हो जाएगी? क्योंकि बातें तो बहुत हैं, हम जनरेट कहाँ से कर रहे हैं पैसा? अब मैं दो चीजें आपसे अर्ज करूं। पहले, अगर इस मुल्क पे पीपल्स पार्टी ने और फिर नून लीग ने IPPs को मुसल्लत किया, और अगर आप ये कहें कि बिजली का रेट होगा 58 या 60 रुपीज पर यूनिट, और आप कहें नहीं आपकी फैक्ट्रियां चल जाएंगी और मुल्क आपका तरक्की कर सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर हम ये कहें कि हम अपने खेतों को खत्म करके और उस पर हाउसिंग सोसाइटीज बना के अगर हम ये कहें कि नहीं मुल्क आगे चला जाएगा, तो नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज मैं आपसे अर्ज करूंगा, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये दोनों पार्टियां पिछले ऑलमोस्ट को 40-50 सालों से बारियां ले रही हैं और तसल्ली के साथ मुल्क के सारे वसाइल को इस्तेमाल कर रही हैं। सर हाउसिंग सोसाइटी वाली बात तो बहुत आगे आपने कर दी है, हम तो कपास की जगह गन्ना उगा के नहीं थक रहे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। इसलिए किससे हमारे सामने आते हैं? जी सर, इसके अंदर भी तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं ना। मतलब मुझे शर्म आती है इस बात पे कि हमें सोया भी बाहर से मंगवाना पड़ता है। ये वो ज़रई मुल्क है जो बचपन से पढ़ते आए हैं, ज़रई मुल्क में पैदा हुए हैं। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि हमारी जितनी इलीट है, मैं ब्यूरोक्रेसी की बात करता हूँ, पुलिस की, और फिर पॉलिटिशियंस की बात करें, दे आर दी वन के आप ये फील करते हैं कि इन्होंने एक लिहाज से मुल्क को प्लान भी करना होता है, मुल्क को आगे लेके जाना होता है। इन तीनों ने गठजोड़ बना लिया, FBR को भी मिला लिया, FIA को भी मिला लिया, जितने भी इस तरह के इदारे हैं, जुडिशरी के अंदर भी मतलब इस तरह के इन्होंने सारे प्रोसेस रख दिए कि अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो वो कहीं ना कहीं आजाद हो जाता है। तो सिस्टम एक ऐसा बन गया है कि दे अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में कहीं से भी होता है, बस पैसा लूटने का बंदोबस्त करें। क्योंकि चले सर, मैं एक और सियासी नौयत का आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, उसके बाद मैं अपने दूसरे गेस्ट के पास जाऊंगी। यहाँ पे मुझे एक सवाल रेज होता है, आपका भी एक जिस इदारे से माजी में ताल्लुक रह चुका है, अभी जो चीज़ें हम देख रहे हैं, और बार बार मैं अपने प्रोग्राम में ये करती हूँ, चाहे वो कोई सियासतदान हो, अपनी पार्टी का सरबराह हो सकता है कि उसके बाद वाली जो क़यादत आती है वो बेहतर हो, हम इस पर कोई नहीं बात कर सकते, हो सकता है माजी के फैसला गलत हो। इसी तरह से जो सर्विस में है उसकी बात करनी चाहिए, जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन्होंने क्या फैसले किए उस पर बात नहीं करनी चाहिए। अभी जो पॉलिसीज आपकी ताकतवर इदारों की लग रही है, क्या आप लगता है कि वो डगर पे लेके जा रही है चीज़ों को? ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, चाहे वो कानून साजी पे कर लें, चाहे ये प्लानिंग्स कर लें कि जनाब एक को लेके आना है, उसके बाद ये रस्सा अपने हाथ में रखना है और आगे जो चीज़ें लेके चलनी है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? नहीं, मैं ये फील करता हूँ कि अगर आप ये कहें कि मुख्तलिफ औकात में या मुख्तलिफ तरह के टेन्योर्स के अंदर आप अपनी पसंद के लोग कभी किसी को आगे लेकर आ जाएं, कभी किसी को आगे लेके आ जाएं, और वन फीस के नहीं इनकी होते हुए, या ओवरऑल है तो फेसेस बेसिकली यही हैं, तो यही सारे लोग जो हैं, अगर मैं लेट मी टेक द नेम ऑफ नवाज शरीफ, कि नवाज शरीफ हैज बीन प्राइम मिनिस्टर फॉर 3 टाइम्स, तो ये सोचने की बात है। और ही वाज चीफ मिनिस्टर पंजाब फॉर 2 टाइम्स,
तो एक शख्स को अगर आपने इतने मौके मिले, ना उन्होंने पंजाब के लिए कुछ किया, ना उन्होंने फेडरल के लिए कुछ किया, और हम स्टिल इफ ही फील करें कि ही इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर फॉर 4th टाइम, आई डोंट थिंक सो कि सिस्टम एक लिहाज से आगे आपको चलता हुआ नजर आ रहा है। बल्कि मैं तो यहां तक आपसे कहूंगा 18 महीने जो पिछले 16 महीने जो गुजरे हैं पीडीएम के, उसके अंदर तो वर्चुअली तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, उनका छोटा भाई ही वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड ही वाज द वन हु वाज टेकिंग डिक्टेशन बेसिकली फ्रॉम नवाज शरीफ कि मैंने मुल्क को कैसे चलाना है। तो जो 16 महीने इस पीडीएम की हुकूमत ने जिस तरीके से मुल्क को चलाया, तो यू कैन मेक आउट कि अगर कोई पसंद का शख्स आता है कि नवाज शरीफ की बात करें तो वो मुल्क को कैसे चलाएगा। मतलब आप कहते हैं ये सर ये तो एक हकीकत है ना, उन्होंने अपने समधी को कुछ बताया ना छोटे भाई को कुछ बताया कि चले जाना मुल्क कैसे चलता है। लेकिन एक और हकीकत भी तो है, जितने मेगा प्रोजेक्ट हैं, मैं इस पर थोड़े पहले बात कर चुकी हूँ, रिपीट करना अच्छा नहीं है कि कितना खाया है मुल्क को छोड़ देते हैं, लेकिन जितने मेगा प्रोजेक्ट हैं वो भी तो आप मान जाएं कि नून लीग की गवर्नमेंट में ही लगे हैं। उसकी ऐसी है कि इन्होंने कर्जा लिया, कर्ज लेके इन्होंने मोटरवेज बनाए, इसके बाद उन्होंने कर्जा अदा करना था तो उन्होंने मजीद कर्ज लिया, फिर और कर्ज ना मिला तो मोटरवे को गिरवी रख के वो कर्जा और उसका सूद अदा करना शुरू किया। ये मोटरवेज हैं जो बेसिकली नवाज शरीफ ने बनाए हैं। बिल्कुल तरक्की होनी चाहिए, लेकिन जब आप बाहर से कर्जा लेते हैं तो फिर आप फोकस ये करते हैं कि वो कर्ज लेके आप फैक्ट्रीज लगाएंगे, आप डैम्स बनाएंगे, सस्ती बिजली पैदा करेंगे, लोगों को खुशहाली एक लिहाज से लेकर आएंगे। ये तो सारे का सारा किया नहीं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप ये बात करती हैं, ये ऐसे जिसको कहते हैं ना जो आंख बंद किए हुए लोग थे, मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ, इन्होंने कहा कि बिजली की बड़ी शॉर्टेज है, इन्होंने 11,000 मेगावाट महंगी तरीन बिजली इंडक्ट कर दी पूरे पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इट इज मोर देन 42,000 मेगावाट की आप बात करते हैं। अब अगर इनसे कोई पूछे अच्छा जी आप कितनी बिजली है, जिसको तफसीली निजाम जिसको कहते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम कितना है, वो कहते हैं जी लगभग को 30-31 हजार है। यानी आप सिर्फ इनकी ये सोचें, क्योंकि मोटे दिमाग के लोग हैं ना, तो इन्होंने कहा जी कि बिजली पैदा कर दो, क्योंकि उसके अंदर वो कमीशन और किक बैक मिल रहे थे विदाउट रियलाइजिंग कि इसका सारा प्रेशर किस पे आना है, ये आप पे, मेरे पे, पूरे पाकिस्तानियों पे आ रहा है। आप मुझे ये बताइए, मैं एक एग्जाम्पल की कोट करता हूँ। पिछले साल एक शख्स का बिजली का बिल आ रहा था जनवरी के महीने में कोई 20,000-21,000, और ये पिछले साल की बात करो, इस साल का जो बिल है नवंबर-दिसंबर की अगर आप बात करते हैं तो वो 32,000 को क्रॉस कर गया है। ये वो तोहफा है जो कि पीडीएम ने या फिर आप उससे कि नवाज शरीफ की हुकूमत ने एक लिहाज से दिया। तो मैं ये जरूर एसी भी नहीं चल रहे इस वक्त, फिर भी एक आम घर का बिल जो है वो इतना ज्यादा अब हमारे सामने आए। मेरे साथ ही रहिएगा असद महमूद साहब। राव इमरान सुलेमान साहब की तरफ चलते हैं। राव इमरान सुलेमान साहब, वही क्वेश्चन आपसे भी रिपीट करूंगी। आपको लगता है कि इस वक्त फैसला साज अगर कुछ कर रहे हैं, हो सकता है कि हमें वक्ती तौर पर ऐसा लग रहा हो कि कोई सिलेक्शन का गेम है और कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन आगे जो पॉलिसीज आ रही हैं वो मुल्क की बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं आपको? हाँ जी, देखिए बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ देखिए, मैं एक चीज को तो बस समझता हूँ कि जो 16 माह की हुकूमत जो सारी सियासी जमातों ने मिलकर, ये बड़ी वो दो कुव्वतें थी जो माजी में इन 70-75 सालों में वफाक में हुकूमतें बनाती रही। इन सब का तजुर्बा जो था वो एक था मुल्क को चलाने के लिए, लेकिन इन 16-18 माह में जो बर्बादी की दास्तानें रकम हुई वो तारीख में 75 सालों में नहीं हुई। इसके बरक्स जो निगरान सेटअप आया, उसके बदले में जो ताजिर बिरादरी और आम आदमी है उनका अगर सर्वे किया जाए तो उन 16 माह की हुकूमत की बजाय ये भी कहने पर मजबूर है कि आप जो इसी हुकूमत को चलता रहने दें। यानी कि नई हुकूमत जो आई है उसका तो हमें और आपको पता नहीं था, हम तो कह रहे थे फैला आ रहा, लेकिन अचानक कोई और आ गया। तो ये तो नहीं कि वो आके कह गया था मैं आऊं तो मेरे लिए कौन चला रहा है ये भी सबको पता है ना, हमें बताने की जरूरत नहीं। लेकिन आर्मी चीफ साहब को अगर आप देखें जिस तरीके से उनके बैनुल-अक़वामी दौरे हैं और इक़्तिसादी बहाली के लिए जिस तरीके से दूसरे ममालिक से वो बातचीत कर रहे हैं, और आपने डॉलर का रेट देखा और आपने दूसरे मामलात भी इनके देखे कि बहुत सारी अशिया खुर्दोनोश की चीजें बनिस्बत 2018 माह के अंदर बहुत नीचे आई। तो उसके अंदर हम देखें कि जो आप कह रही आने वाले दिनों के अंदर जो है, तो आने वाले आप ही ने थोड़ी देर पहले बात की, वो जो 3 साल 3.5 साल वाली बड़ी, अगर हम ये कह दें कि चले इसको कुछ चला रहा है तो चलाने वाला रहेगा, चलाने वाले का टाइम है, लेकिन जो इस वक्त निगरान सेटअप है वो चला जाएगा, लेकिन चलाने वाला उनको भी चलाएगा, लेकिन वो किस तरीके से चलाएगा कि क्योंकि जिसको वो लेकर आ रहे हैं वो वफादार आदमी नहीं है। माजी में भी उसने
मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा निगरान सेटअप हुआ उसको कौन चला रहा है सबको पता है, लेकिन जो क्रूशियल किस्म के इकदाम लिए गए हैं वो मुल्क की इकोनॉमी के लिए भी बेहतर हुए, पाकिस्तानियों के लिए बेहतर हुए, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे महसूस कर रहा हूँ उसकी निस्बत में एक आम आदमी की हैसियत से बात करूं, मैं सौदा सलफ खरीदता हूं, मैं बाहर निकलता हूं, मैं खुद भी महसूस कर रहा हूं थोड़ी सी जान क्या छोड़ी, थोड़ा सा तो सुकून आया। तो मैं समझता हूं कि चलाने वाला चलो कोई भी है, लेकिन एक शख्स है जो कि आपके पास एलओसी की बात नहीं करता, आपके दिफाई अमूर की बात कम करता है और कहता है कि मुल्क की मैशियत, सियासी इस्तेहकाम में मुल्क की मैशियत का फरीजा दफन है। तो हम ये कहते हैं कि ये चीजें भी उनके मुंह से जेब नहीं देती, लेकिन अब चूंकि खुलकर सब कुछ सामने आ चुका, पहले तो ये था ना और उसमें सबसे चोरी छुपे सारा मामला होता था, अब तो जो हो रहा है ना वो हो रहा है, शुएब शाहीन एयरपोर्ट पे आता, आने नहीं दिया जाता, जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ सबके सामने हो रहा है। लेकिन अगर अच्छा हो जाए, अगर मैडम ये कहें कि हम अच्छा हो जाए तो क्या बुराई है। अगर मैं आपसे एक बात करूं कि हमारा झगड़ा असल है जमहूरियत और आमरियत का, तो मैं आपको मेरे साथ चले मार्केट के अंदर, एक वो आदमी जो कि अभी पढ़ लिख कर जवान हुआ और एक वो शख्स जो कि एक अनपढ़ जाहिल है या उम्र रसीदा है, उससे पूछे कि भाई आमरियत क्या है, जमहूरियत क्या है। मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूं कि आपको 80% लोगों के मुंह से ये नहीं पता चलेगा जमहूरियत किस बला का नाम है और आमरियत किसे कहते हैं। उनको अगर किसी चीज में चाहिए, वो चाहता है कि मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिले, मेरे बच्चों की फीस अदा हो सके, मैं बीमार हो जाऊं तो अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में मुझे इलाज फ्री मिले, मुझे कम से कम बेड मिल जाए वहां पर। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जब हम ये चीजें तमाम कहते हैं तो उसमें एक शख्स ये नहीं देखता ये चीजें मुझे जमहूरियत में मिली कि आमरियत में। लेकिन अगर हम पाकिस्तान का दौर उठाकर देखें कि जमहूरियत पर शब खून तो लगे हैं, मगर फायदा और तरक्की की अगर हम बुनियाद देखें तो वो आमरियत के दिनों में ज्यादा नजर आई है। लोग अयूब के दौर को अच्छा कहेंगे, लोग मुशर्रफ के दौर को अच्छा कहेंगे। ये क्या वजह है कि ये सियासतदान नाकाम है, इस जमहूरियत के माथे पर कलक इन सियासतदानों ने लगाया। मैडम सिर्फ एक सवाल आपसे, आप ताकतवर हैं, मुझसे नहीं चीज चल रही, मुझे पता है कि आप कर रहे हैं, माई बाप हैं आप। अब ये बैठा शख्स, ये बैठा शख्स, हम तीनों अपने मामलात आपके पास क्यों लेकर जाते हैं, क्यों आपको अपने दखल अंदाजी करते हैं। सैलाब आता तो क्या मेरे पास इतनी इंतजामिया नहीं कि मैं सैलाब के रस्तों को रोक सकूं, आप फिर भी उनको बुलाते हैं, हर मामले में उनको बुलाते हैं। इलेक्शन शिफाफ नहीं है तो आप फिर भी उनको बुलाते हैं, हर मामले में उन्हीं को बुलाते हैं और अपनी मसाइल भी उनके पास लेके जाते हैं। तो फिर जमहूरियत कहाँ रह गई है इस चीज के अंदर, हम कहाँ शिकवा करें उनसे। चलें, इसका बड़े मजे का जवाब है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक छोटा सा लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। और जब हम भी लिखने में और सहाफत की तरफ पहले नए आए थे तो हम भी अपने कॉलम्स में कहते थे जब अफवाज को ही सब कुछ करना है तो जमहूरियत की देवी को क्यों ऐवानों में सजा के रखा। भाई ये काम नौजवानों की सोच होती है, लोग समझते भी कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये याद रखिए कि जिस मुल्क में आमरियत होती है वो मुल्क 20 साल पीछे चला जाता है और उस मुल्क से कोई भी दुनिया में मुल्क जो है वो रब्ता करने की कोशिश नहीं करता, उनको पीछे कर देता है। और हम जिस मुल्क में रहते हैं, हम एक तरक्की पजीर मुल्क का हिस्सा है और तरक्की पजीर के हम 3rd वर्ल्ड में भी नहीं, अब तो शायद 4th वर्ल्ड में आने लगे हैं। उम्मीद है कि बेहतरी हो जाए, लेकिन उसमें हमें ज़रूरत होती है कि बैनुल अक़वामी कर्ज़े भी मिलें, इमदाद भी मिले, उन सब चीज़ों के लिए, एड के लिए भी, राब्तों के लिए भी हमें ज़रूरी है कि जमहूरियत की देवी हो। और जमहूरियत की देवी को पूजा करने के लिए जनाब आगे ये होता है कि और बहुत से ताकतवर जो इदारे होते हैं वो उनकी बैक पे होते हैं और उनसे काम करवा रहे होते हैं। ये एक हकीकत है, इसको हमें एक्सेप्ट करके ही अगर हम आगे चले तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते जनाब हमारी एक बात तराना साहिबा मेरे साथ मौजूद है। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच सना, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। मैडम, पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में सरप्राइज दे दिया है और आगे आप क्या समझती हैं कि अभी तक तो हमें लग रहा था कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल बलूचिस्तान से एक तरफ हो गई है, 3 महीने पहले की सियासत कुछ और थी, अचानक से इस वक्त में पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान वाली सियासत मुख्तलिफ होती हुई नजर आ रही है। क्या कोई सिग्नल मिल गया है, कोई स्ट्रेटजी इस कान में कोई कह गया है, हुआ क्या है? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है, आपने देखा कि बिलावल साहब की जब भी कभी कोई ऐसे इलेक्शन कैंपेन होती है, 2016 से उन्होंने कश्मीर से आगाज किया, फिर गिलगित बल्तिस्तान पे 2018 में पाकिस्तान की इलेक्शन कैंपेन, और मतलब वो मुतअद्दिद कैंपेन्स चलती रहती हैं। अवामी मार्च आपने लास्ट ईयर देखा, फिर उसके बाद ऐसा ही है कि अभी ये जब कैंपेन स्टार्ट हुई है तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तक कोई भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरह से एक अवामी जो पावर शो है वो नहीं कर दिखाए हैं जिस तरह से
بلاول صاحب نے خیبر پختونخوا سے اس کا سٹارٹ لیا. تو بلوچستان میں ہم بھی ان کے وہاں پہ موجود تھے جب ایک بہت بڑا پاور شو کیا گیا, اور یقیناً عوام کی جو تعداد تھی وہ تمام جو علاقے ہیں ارد گرد کے ضلع ہیں ان سے آئے ہوئے لوگ تھے, وہاں پہ ان سے بات چیت بھی ہوئی. تو بات یہ ہے کہ عوام میں زندہ رہنا ہی جمہوری پارٹیوں کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ فورسز تو جیسے مطلب ہمارے اوپر تو بیرونی بھی بہت زیادہ پریشر رہتا ہے ہر وقت کے لیے, اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت دباؤ میں آ جاتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں کھیل لیتے ہیں, مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی تک اپنا سٹانس ایک بہت کلیئر رکھا ہوا. اسپیشلی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک جو تاثر تھا 16 مہینے بڑی اچھی آپ کی رہی بات چیت ان لوگوں سے, سب تمام پارٹیز نے مل کے حکومت کی ہے. کوئی کسی کو بلاول صاحب اپنا انکل کہتے تھے, کوئی ان کو چھوٹا بھائی کہتے تھے, کوئی بہن بھائیوں والی سیاست بھی ہو ری تھی. میں مانتی ہوں کہ سیاست میں یہ سب کچھ ہوتا ہے, اس میں میں انگلی نہیں اٹھا رہی ہوں, لیکن اتنی زیادہ بے رخی کہ بالکل ہی آنکھیں پھیڑ لی ہیں, اور آپ جو بالکل ایک طرف کر دیے گئے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ لاڈلے بن گئے ہیں. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی؟ جی دیکھیں, ابھی تو یہ وجوہات تو وہی بتا سکتے ہیں کہ جنہوں نے عمران خان کو بھی لاڈلا بنایا تھا, اور لاڈلا بنانے کے بعد اس کو بھی جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا. میں تو سچی بات بتاؤں, ایز اے پولیٹیکل ورکر, میں اس وقت پی ٹی آئی کے جو شو ہوتے تھے ہر وقت ٹی وی کے اوپر ایک ہلا گلا لگا رہتا تھا, میں اس کو بڑا مس کر رہی ہوں. مگر یہ کہ سیاست جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو اس میں جو بڑی 3 پارٹیز ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی, تو اگر دیکھا جائے تو رونق تو انہی کی وجہ سے لگی رہتی ہے. اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے, ظاہر ہے وہ ایک سب سے زیادہ پرانی پارٹی ہے, اور اس وقت 55 سال ہو چکے ہیں اس پارٹی کو, اور متعدد ہم نے دفعہ دیکھا کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا. مگر ابھی نوجوان لیڈر جو ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, ظاہر ہے سب کی نظریں انہی کی طرف ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کی پی ایم ایل این سے ہمارے پچھلی حکومت میں ساتھ ساتھ کام کرنے کے, تو ہم سمجھتے ہیں, میرا خیال ہے کہ اس وقت ملک کی بہتری کے لیے بہت اچھے اقدامات کیے گئے. ایز اے فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت اچھا اپنا رول اپنایا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے باقی لوگوں کو بھی عہدے دیے گئے, وزارتیں دی گئیں. پورا اچھا وزارتوں کا جو تھا وہ ایک دورہ تھا, اس میں لوگ کام بھی کر رہے تھے. آئی ایم شیور کہ ابھی جو اندرونی بات ہے پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی, ابھی تو یہ آگے الیکشن کا دور ہے, اور میرا خیال ہے کہ اونچ نیچ آتی رہتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی بہت سارے ایسے ہی چیزیں چلتی رہتی ہیں. ماضی میں ایسا ہوا ہوگا, لیکن یہ بھی آپ ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ یہ جانتی ہیں کہ اس دفعہ کے ہمیشہ کے الیکشنز امپورٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ والے الیکشن سیاست کا بھی فیصلہ کریں گے اور مستقبل کا بھی فیصلہ کریں گے. جن صورتحال بالکل, یہ واقعی میں بہت مشکل, مطلب یہ ایسا میں نے ٹائم کبھی دیکھا ہی نہیں ہے ویسے پاکستان میں, ٹو بی ویری آنیسٹ. بڑا ایک کلیئر سا وہ ہوتا تھا کہ آپ کو انڈیکیشن دے دی جاتی تھی, مگر اس دفعہ جو سب سے جو بڑی اور مشکل بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے, مطلب ایک بڑی سیاسی جماعت, اور اس نے حکومت کی جیسے بھی, اور 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وقت جو عمران خان صاحب ہیں وہ اس وقت ایک مقبول ترین لیڈر کے طور پر بھی ابھرے پاکستان میں, اور اگر وہ نہیں شامل ہوتے, مطلب ایک انسرٹینٹی سی ہے, کیونکہ ہمیں ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ سوال کیا جاتا ہے ہر جگہ. کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ بڑی کم وقت میں آپ سے بڑی امپورٹنٹ کوشچن پوچھ لوں. ہماری اقبال ترانہ صاحبہ, نواز شریف صاحب نے اسپیشلی کراچی کا ذکر کیا, امن قائم کیا ہم نے, ووٹ کسی اور کا, چترال کا بھی ذکر کیا. چترال میں بھی آپ کا ایک ووٹ بینک ہے, اور چترال کا جو پرانا ووٹ بینک ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. انہوں نے بہرحال کسی اور جماعت کا بھی ذکر کیا, میں اس وقت ذکر نہیں کر رہی ہوں, لیکن اسپیشلی آپ کے ہوم گراؤنڈ کے اوپر بات کی گئی ہے. کراچی کے حوالے سے اسپیشلی کہا گیا کہ کراچی میں امن ہم نے دیا, ووٹ کسی اور کو مل گیا. کیا کہتی ہیں اس پہ؟ ابھی تو آپ کی لوکل گورنمنٹ میں بھی آپ ہیں, تو آگے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتحاد ہے آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں, نقصان تو کچھ بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں. لیکن لوکل باڈیز الیکشن میں تو پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ سے ری ایمرج ہوئی ہے نا. اس سے پہلے تو پی ٹی آئی کے بہت سارا بڑا ووٹ بینک تھا جس میں سیٹس وغیرہ تھی, پر لوکل باڈیز الیکشنز نے ایکچولی ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ آنے والے الیکشن کے ٹائم میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بہت جو ہے نا وہ بڑی واضح اکثریت حاصل ہے. تو ابھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی پیپلز پارٹی, پاکستان کی سیاست میں ویسے جتنے بھی اس وقت تک لوگ تجزیے کرتے رہے اور ماضی میں الیکشنز کو بڑے غور سے دیکھتے رہے,
ہم بھی بڑے متجسس ہیں ایز اے پولیٹیکل ورکر، کیونکہ ہم سے یہ ہر جگہ پہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا الیکشنز ہوں گے، کیا عمران خان صاحب کو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملے گا. تو یہ وہ سوال ہیں کہ جو پہلی دفعہ زندگی میں کہ ایک پولیٹیکل ورکر جو آن گراؤنڈ کام کر رہا ہے وہ بھی بڑا کنفیوز ہے کہ بھائی ہو کون رہا ہے، چلا کون رہا ہے ملک، آگے کیسے چلے گا. سیاست کا لبادہ تو سب نے اوڑا ہوا ہے، پر ایکچولی سیاست کو کوئی سمجھا نہیں جا رہا ہے. بڑی معصوم لگ رہی ہے مجھے یہ بات کہتے ہوئے. نہیں، معصومیت کی بات نہیں ہے سنا. ٹو بی ویری آنےسٹ، ہم لوگوں نے سچ بولنا چھوڑ دیا ایکچولی. اس ملک میں سب سے بڑا نقصان جو ہم لوگوں نے کیا ہے نا، ایکچولی سیاست کی بیان بازی میں ہم سچ بولنا اپنے آپ سے بھی چھوڑ دیا ہے، اور ہم نے اپنی اگلی نسلوں کے لیے بھی کچھ ایسی واضح مثال قائم نہیں کی ہے کہ جس کے اوپر وہ جو ہے نا فخر کر سکیں کہ ہاں اس ملک میں سچ بولا جاتا تھا. اور تاریخ میں اگر اس وقت میں کوئی کٹھن وقت تھا تو کوئی ساتھ کھڑا تھا. آپ نے کہا کہ پہلے ایسا نہیں ہوا، آپ کی پارٹی پہ بھی تو یہ وقت آیا تھا، مخدوم امین فہیم صاحب کو آگے کیا گیا، نئی پارٹی راتوں رات بنا دی گئی، تلوار آ گیا، تیر اور تلوار کی کہانی شروع ہو گئی. تو یہ تو آپ کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. یہ کوئی یہ تو جنرل مشرف کے دور میں ہوا، پھر اس سے پہلے ضیاء کے دور میں ہوا. دیکھیں زیادتیاں تو بہت ساری کی گئی، مگر یہ ہے کہ ہمیشہ ہم نے دامن نہیں چھوڑا نا صبر کا ساتھ. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی وہ بھی، اور جو اس وقت کا پولیٹیکل ورکر تھا، اور بڑے کمیٹڈ لوگ تھے. مطلب آج جو میں سب سے زیادہ جو چیز دیکھ رہی ہوں پاکستان کے اندر، وہ کمٹمنٹ کی کمی ہے. ایکچولی کمٹمنٹ نہیں ہے، شارٹ کٹ راستے سے ہر بندے کو پتا ہے کہ کون سا راستہ جو ہے نا، کون سا گیٹ کہاں کو جا رہا ہے، کہاں سے سلامی ملے گی، کہاں سے اوکے کی رپورٹ ملے گی، اور فوراً آپ لیڈر بن جائیں گے. تو جہاں ہم نے شارٹ کٹ لینے شروع کیے نا، وہاں پہ ہمارے پاس لیڈرز کا فقدان ہو گیا. اب لیڈرز بہت کم نظر آتے ہیں پاکستان میں. ایسی بھی پارٹی ہے جس میں لیڈر نظر آ رہے ہیں، ورکر کہاں ہیں یہ نہیں پتا چل رہا. کراچی میں تو ایسی پارٹی ہے، سرمایہ دار زیادہ ہو گئے، ورکرز کم ہو گئے. میرے ساتھ رہے گا. میں آخری کامنٹ جو ہے راؤ عمران سلیمان صاحب سے کر لوں. راؤ عمران سلیمان صاحب 1 منٹ ہے آپ کے پاس. مجھے کراچی کی صورتحال اسپیشلی سندھ کی سیاست پہ کیا بات کریں گے، جبکہ نواز شریف کا کامنٹ آپ سن چکے ہیں. دیکھیں، یہ تمام جو ان کا اتحاد نواز شریف کا ایم کے ساتھ بننے جا رہا ہے، نون لیگ کے ساتھ، یہ ایک اتحاد ضرور ہے، مگر یہ نظریاتی اتحاد نہیں ہے. نظریاتی اتحاد یہ ہے کہ ہمارا سیاسی حریف تو ایک ہے، مگر ہمارے نظریات نہیں ملتے. ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں کچھ مسائل کھڑے رہیں گے، لیکن الیکشن ہو جائیں گے، کہیں نہ کہیں آپ بیٹھ جائیں، کہیں میں کھڑا ہو جاؤں، اس طرح ہو جائے گا. لیکن ایک نظریاتی فطرتی طور پر یہ دونوں جماعتوں کا دماغ نہیں ملتے. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تو نہیں ہلا سکتے یہ، لیکن اپنے سیاسی جو اجتماع بنا کر یہ سیاست کریں، الیکشن کا ماحول پیدا کریں، اس میں یہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے مل جل کر. بالکل وہی حال کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ محمود مولوی صاحب نے عامر لیاقت صاحب کے حلقے میں کیا تھا. کیونکہ اس وقت سندھ میں مضبوط ترین ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اس کے خلاف جتنے بھی اتحاد ہیں وہ پارا پارا ہو جائیں گے. اور اگر امن و امان کی کراچی میں 1 منٹ کی بات میں، اچھا اس پہ کیا، میرے پاس وقت کم ہے، اس پہ کیا کامنٹ کریں گے کہ ایسی بھی پارٹیز ہیں جس میں لیڈر زیادہ ہیں، ورکر کم ہے؟ میرے خیال میں وہ مسلم لیگ نون ہے. 1 منٹ میں بات ختم کر دوں، اگر 2 سیکنڈ اور دے دیں. 40,000 جی سر ان کے پاس کاغذات جمع ہو چکے ہیں الیکشن کے لیے، جن میں سے 2 لاکھ روپے میں نے 1 لاکھ روپے ایم پی اے کی ہے. 40,000 درخواستیں جمع ہو چکی ہیں، مگر ان 40,000 کاغذات کے ایک طرف ان کے پاس ووٹ ڈالنے کے لیے ووٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے، امیدوار زیادہ ہیں. تو لہٰذا آپ دیکھ لیں میرا سوال. بہت شکریہ ماری اقبال ترانہ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہی رہو. عمران سلیمان صاحب، اسد محمود صاحب، آپ کا بہت شکریہ. لیکن امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے ہاتھ سے. مسئلہ صرف یہی ہے کہ اگر نوجوان نسل کی بار بار بات کی جاتی ہے، میں نوجوان نسل کو میرا خیال ہے کہ جب تک الیکشنز ہوتے ہیں روزانہ مخاطب کر کے کہوں کہ آپ کو ووٹ کا حق اپنا نہیں چھوڑنا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ تبدیلی نہیں آئے گی، چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. آپ ہی ہیں جو چیزیں بہتر کر سکتے ہیں. کلکلا کسی اور پہ قصوروار مت ٹھہرائیے، کسی اور کو قصوروار مت ٹھہرائیے گا، کسی اور پہ ذمہ داری مت ڈالیے گا. اگر آپ خود اپنے ووٹ کا حق استعمال نہیں کر سکتے، پاکستان کو بہتری پہ لا سکتے، بہتر پوزیشن پہ لا سکتے ہیں، تو آپ لوگ لا سکتے ہیں. میرے ملک پہ وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.